آگے چلیں گے. اس وقت جناب اسپیکر یہ ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. اچھا ناظرین، یہ جو بات کر رہے ہیں محترم شہباز شریف صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ آج جب سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ چونکہ جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی یہ جو ڈسینڈنگ نوٹ ہے، اختلافی نوٹ ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے. جب اس حوالے سے جو نئے اٹارنی جنرل اپوائنٹ ہوئے ہیں انہوں نے یہ جو ہے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا، آج فائنل بینچ جس کو سن رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ یہ اس کا جو موجودہ ہم کیس سن رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. اور وہاں پہ اس موقع کے اوپر جسٹس مندوخیل صاحب جو اس اختلافی نوٹ کا حصہ ہے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کا ایک اندرونی معاملہ ہے، اس کو اندرونی سطح کے اوپر ہم دیکھ لیں گے. بنیادی جو سوال ہے وہ جس کے لیے ہم نے یہ بینچ بنا ہوا ہے وہ ہے کیا الیکشن کمیشن انتخابات کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ناظرین وہی ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونے یا نہیں ہونے، اس حوالے جو آج جو ساری کی ساری ہیئرنگ ہوئی ہے. لیکن محترم شہباز شریف صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ تو اس موقع جو اختلافی نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پورے کا پورا ایک لائے عمل ہی انہوں نے دے دیا. سنیں ذرا جو آیا ہے اس حوالے سے ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے. پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. ان آنریبل ججز کے کل کے فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سے کے اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں، گفتگو ہے، اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ ایک امید کی نئی کرن ہے. اس لیے کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا، آنے والی نسلیں میں معاف. اچھا ناظرین، معاملہ جو ہے عدالتوں کے حوالے قیامت کی آ گئی ہے، یہ انہوں نے کرنا تھی. میں جو ججز نے کیا کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے ججز نے جو ان کو اتنے مروڑ اٹھے ہوئے. وہ آج وہ ایک اٹھتا ہے وہ 2-3 نہیں ہے، وہ 4-6 ہے، وہ 5-15 ہے. بھائی بس کرو یار، کیا کہتے ہیں یہ. اچھا جو صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم جو میں جسے عرض کیا نا کہ مسئلہ ایک ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انتخابات میں نہیں جانا چاہتے. پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ ہر انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے وہ کچھ بھی کرنا اگر ان کو کرنا پڑے وہ کریں گے. جی صاحب، ایک ہی الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کے پہلے کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس کے جڑے حلوے مانڈے لگے رہے نا وہ انہیں کیا نہیں لین دیتا. خور اٹھتے رہے کہ اگر یہ ہماری حکومت جو ہے یہ بادشاہ جو ہے کھین گئی اتنا جتنا حصہ ملا ہوا ہے تو ہم تو ماریں گے. تو اندر مڑ کے باہر یہ لگے ہوئے ہیں اور اس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ خدا کی پناہ. ادھر دیا کبھی لوگوں کے بچوں کو 10 سال کے بچے کو اٹھا کے لے جاتے، 5 سال کے بچے کو لے گئے، 3 بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے کو اٹھا کے لے گئے اور کوئی اس پر ادھر دھیان نہیں ہے. وہ ججوں کو انہوں نے قید کرنا ہے، اندازہ لگا ہے. چلیں چوہدری صاحب، جو آج سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، جو سپریم کورٹ کا پٹیشن سن رہا ہے، پٹیشن کیا سو موٹر نوٹس ہے اس کے اوپر ظاہر سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا 1 مارچ کو. اس کے اوپر پہلے تو تاریخ دے دی تھی 8 اپریل کی پنجاب کے اندر الیکشن کے حوالے سے، اس تاریخ کو واپس کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. ایک نئی تاریخ جو ہے 8 اکتوبر دے دی گئی، 30 اپریل اور 8 اکتوبر اب نئی تاریخ آ گئی ہے. آج جب ہیئرنگ شروع ہوئی جو صاحب وہاں پہ چیف جسٹس عمر عطا بلیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب بختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال الدین خان مندوخیل جو ہے یہ بینچ میں سماعت کی اس کیس کی. سادہ سا سوال ہے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کیا اس کے پاس ایسا اختیار تھا؟ چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سے سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں. چیف جسٹس عمر عطا بلیال صاحب نے فرمایا کارروائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے پہلے فیصلہ دیا، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے بات کی. فیصلہ
3-4 से हुआ था, तो हुक्म का वजूद ही नहीं है, जिसके खिलाफ वर्जी हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब, मौजूदा केस में इस्तदा ही है, इस फैसले पर अमल दरामद की है, अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालती फैसला कितने अरकान का है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के ये रिमार्क्स हैं, ये बुनियादी तौर पर ये वही मामला है जो आज मुहतरम शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश न किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के रिमार्क्स, मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजम है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, इलेक्शन तो हर सूरत में होने हैं, सवाल ये है कि अब 90 दिन से ज्यादा तारीख कौन बढ़ाएगा, ये जस्टिस मंदोखेल साहब ने सवाल उठाया है। अदालती फैसले पर अमल हो चुका हुआ है। सदर मुमलिकत की तारीख पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया। ये जस्टिस इजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं, क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि सदर मुमलिकत की तारीख को तब्दील कर दे। इजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन तारीख को तब्दील करने के लिए सदर से रजू कर सकता था। जस्टिस इजाजुल हसन साहब, तमाम इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन के पाबंद हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब, इंतखाबात मुमकिन नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को अदालत से रुजू करना चाहिए था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स। नाज़रीन, बात भी आपको ये जो हेयरिंग न्यूज़ के रिमार्क्स सुनाएंगे, हमारे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त हो रही है वो ये है कि जो इस्लाहात करना चाह रही है हुकूमत वक्त, चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियार हैं बेंच बनाने के, सो मोटो नोटिस लेने के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया। अब आपने ये सारे का सारा मामला सुन भी लिया होगा, आपको खबर भी मिल गई होगी, तो थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि बुनियादी तौर पर चलें इस्लाहात हुकूमत वक्त कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो आइन का आर्टिकल 191 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स, रेगुलेशन, द प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। उसके अलावा मैं पढ़ रहा था कि ऑर्डर नंबर 11 है सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, वहां बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है या बेंचेस के बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है। सवाल ये है कि क्या पार्लियामान को ये इख्तियार हासिल है कि वो रेगुलेट करे और इस तरह की कानून साजी करे, या फिर आईनी अमेंडमेंट की तो समझ आती है, बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमें कुछ बताया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट की शक्ल नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। पहली बात तो यह है कि ये इस्लाहात नहीं करने जा रहे, ये फसाद पैदा करना चाह रहे। ये जो मौजूदा हुकूमत है इनके पास इस्लाह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये इस्लाह के लिए नहीं, ना ही इस्लाहात के लिए कर रहे। इनको नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन बुरी तरह हाथ जाएंगे। इन्होंने पहले दिन से एक ही रट लगाई हुई है और एक ही इनका मसला नजर है कि कोई तरीका इबादत हो जिस तरीके से वो इंटरम सेटअप के जरिए चलाएं। उनका तरीका इबादत अब ये है कि 8 अक्टूबर का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त तक होगा नहीं, उसके बाद हम कोई इमरजेंसी लगवा के इसको नेशनल असेंबली को 1 साल के लिए आगे ले जाएंगे और ये प्रोविंशियल असेंबलीज को भी इसी तरह अपने कठपुतली बिठा के हम इंटरम सेटअप के जरिए ये हुकूमतें चलाएंगे। और इस अंदाज गुफ्तगू से ये कोई इस्लाहात इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद इलेक्शन ना कराना है। आज कोर्ट ने भी उनसे यही पूछा है और ये पहले दिन से यही बात है कि 90 डेज का मतलब 90 डेज है और 90 डेज में आप इलेक्शन कराएं। और इलेक्शन 90 डेज में अगर नहीं हो सकता तो पिछले फैसले में ये लिखा हुआ है कि मिनिमम पॉसिबल जो डेविएशन हो सकती है, और वो भी इलेक्शन कमीशन की सदा और बार बार रिक्वेस्ट थी कि हमें 42 डेज चाहिए, 52 दिन चाहिए कि जो हम अपना शेड्यूल दे सकेंगे। तो इसलिए मिनिमम इतना टाइम हमें दे दीजिए, और वो उनको उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आप उस शेड्यूल 52 डेज को आप 42 डेज पे भी ला सकते हो, 35 डेज पे भी ला सकते हो, उसके लिए कंपल्सरी नहीं है। ये जो इस्लाहात की आड़ में फसाद बर्पा करना चाहते हैं ये वाले लोग, पीडीएम की जमातें, ये कर नहीं सकते। उसके लिए देखें 184C की जो पिटीशन है
वो आर्टिकल 184(3) में या तो फिर 2/3 मेजॉरिटी इनके पास हो, वो उसमें अमेंडमेंट कर दें कि इसमें ये इस तरीकाकार के मुताबिक आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग होगी और उसके अंदर कोई अपील या जो कुछ कहना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रूल मेकिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट खुद है, और जो कल वाला फैसला है, जो डिसेंटिंग नोट है 2 ऑनरेबल जजेस का, उसमें भी ये प्रपोज किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठे और वो इन रूल्स को अमेंड करे। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आज जस्टिस मंदोखेल साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो जो 3-4 का मामला बनाया जा रहा है, जो हमारे इख्तिलाफी नोट को लेके आज अटॉर्नी जनरल अवान साहब पहली दफा हुआ है, उसको आप इशू बना रहे हैं, उसको छोड़ दें, ये हमारा अंदरूनी मामला है, कोर्ट उसको देख लेगा कि हमने अंदर किस तरह रेगुलेशन करनी है, जो मुझे समझ आई। आप उसको इस सारे के सारे मामले को लेके नेशनल असेंबली के फ्लोर पे जाना हुकूमत वक्त की तरफ से, और उसके बाद काबीना की मीटिंग, और ये जो सारी की सारी रेगुलेशन है, अब ये बात कुछ समझ नहीं आ रही कि आप ये कहां से कहां ये डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ही रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा किसी न किसी सदस्य के ऊपर, कि जनाब आला ये हमारा मामला है, हम इसको देख लेंगे? लेकिन बात दुरुस्त है आपकी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ही रद्द-ए-अमल, सुप्रीम कोर्ट देखें वो इनकी हर बात का जवाब देने की बजाय वो फैसला करेगी। मेरा ख्याल है कल या परसों या 2 दिन मैक्सिमम में ये फैसला आ जाना है, और इस फैसले की रूह से ये तय होगा कि मेरा मुझे तो लगता है इसमें तो कोई इबाम नहीं है। पिछली दफा तो चलो इबाम था कि क्या सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार है डेट देने का, क्या गवर्नर को ये अख्तियार है, या इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन ने पिछली दफा खुद आकर कह दिया था कि मुझे अख्तियार नहीं है तारीख देने का, ना ही कोई तारीख को चेंज करने का। तो आज ये बार बार उनसे यही सवाल हुआ था से भी कि जो इलेक्शन कमीशन कल तक ये कहता था कि मुझे तारीख देने का अख्तियार नहीं है, तो उसको फिर वो तारीख को तब्दील करने का अख्तियार किस कानून, किस लॉ, किस रूल और किस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत आ गया? क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। आपने कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने अपनी पावर एक्सरसाइज कर ली, और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट की पावर जब एक्सरसाइज हो जाती है तो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वो खुद भी फंक्शन ऑफिस हो जाता है। फिर ये नहीं है तो रोज वो भी अपनी तारीखें तब्दील करता रहे। उसने एक दफा तारीख दे दी और तारीख भी 90 डेज में होनी चाहिए। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया था कि हम आपको एग्जेम्पशन इसलिए दे रहे हैं कि इस केस में भाग था, आपका टाइम बहुत लगा। शेख साहब, ये तो बहुत चीज वाज़ेह नजर आ रही है, क्योंकि मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वही इस मामले को देख लेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद आएंगे आप इस्लामाबाद।